Now we are well versed about what is cash book. About the petty cash book, na petty means small, but here small is in the context of the amounts that you are spending. Okay, means small amounts, means small expenses like day-to-day expenses in the business premises. For example, you know, there are a lot of checks, cash deposits and withdrawals. There's a lot of transactions done between us and the bank, correct? So there is a person who drives to the, or who goes to the bank, again comes back, correct? And it is daily ka kaam, almost daily ka kaam. And apparently the bank is at a distance from our business premises, okay? So that person will take a rickshaw, cab, or rapid, or whatever it is. He's going to take money from us only. Is it a traveling expense? Paka. So now that is multiple times, but traveling expense will not be more than 50 rupees or 60 rupees one time wala. So he's not going to go to the manager or CEO to ask for money. वो कैशियर के पास जाएगा. एंड कैशियर के पास में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो क्या करता है, ही गिव्स हिम अ सर्टन अमाउंट like 1,000 or 2,000 rupees, that whenever you want to go to bank, use it from this. If you want to buy some stationery item, use it. So here there is a cashier, the main cashier, and there is one more cashier who takes care of all the petty expenses, and that person is called as petty cashier. The person who prepares the petty cash book, na sir, he is called as a petty cashier. है ना? A person who prepares the cash book is a cashier. But here the main part is the petty, because there are small transactions, and I would say these transactions are multiple in nature, recurring in nature. Correct? In this, we are going to study the two types. The very first one is a simple petty cash book, and the other one is analytical petty cash book. Now, what is the difference between these two? The heading suggests you the meaning, right? It's simple, is like basic, yeah, the basic cash book that we were doing. But here, earlier, when the simple cash book, double column cash book, and the triple column cash book, we made the ledger. Here, we won't be preparing it in a ledger form, because this petty cashier is a peon, है ना? So he will not be well versed with the accounting and knowledge and all. So he prepares in his own sweet way, and we will also make it very simpler for him, ताकि वो लिख तो पाए, है ना? We'll give him a system. So here the petty cashier is going to maintain the records, but in a different sheet of paper. It won't be an perfect account kind of a account, but the sheet where it records a transaction in a systematic manner. Perfect. First one is simple but basic. Second one that we have, this one is the analytical. Now what do you mean by analytical? In normal sense में आपके हिसाब से क्या होगा वो? कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है, इतना सोच के अकाउंट टू स्टूडेंट में तो कॉम्प्लेक्स ही लगेगा तुम लोग को, बट ऐसे नॉर्मल जनरल सेंस में क्या होगा वो? मतलब वो थोड़ा टफर लेवल का होगा इसके लिए. और आई वुड से बहुत सारे एनालिसिस आप कर सकते हो उसके रिकॉर्ड्स के हिसाब से, है ना? वो जब भी आएंगे तभी उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा ज़्यादा आई ड्रॉ a picture, but as of now first let's complete the petty simple petty cash book. ये बेसिकली आपका कैश बुक ही है सर. आपको आपको फीलिंग आएगा कि कैश बुक ही है. द फॉर्मेट बहुत बेसिक है. सबसे पहले हम लोग डेट बनाते थे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट, बट कौन सा अमाउंट? अमाउंट रिसीव्ड. हाँ, परफेक्ट. फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे मालूम है? विल प्रिपेयर द डेट कॉलम. करेक्ट है? अरे यार. एंड देन नॉर्मल पर्टिकुलर्स 2 बाय वो जो लिखते थे ना हम लोग. अच्छा, फिर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे लेजर फोलियो.
And you do know that in cash book we used to prepare one more column that was our voucher, because we receive voucher, ledger, folio, voucher number, and the amount. सिर्फ वाउचर नंबर. वाउचर नंबर. हाँ, नाउ गुड क्वेश्चन. जैसे मैंने वाउचर नंबर लिखा ना, तो मेरा क्लिक हुआ कि आई वुड रिसीव अ वाउचर, आई वुड रिसीव अ रिसीट नंबर ऑल्सो. सो यहाँ पे वाउचर नंबर एंड यहाँ पे आएगा रिसीट नंबर. सेम लॉजिक जो हम लोग का किस में था, इन अवर सिंपल कैश बुक. इतने सारे वाउचर रिसीट नंबर नहीं होते, बिकॉज यू रिसीव ओनली वंस एंड आफ्टरवर्ड्स यू आर डन. बट क्या होता है ना, कभी कभार हम लोग अपार्ट फ्रॉम द कैशियर ऑल्सो वी रिसीव द पेमेंट. नहीं समझा? सिंपल है. तो लेफ्ट साइड पे डेबिट का और राइट साइड पे क्रेडिट. अगेन सेम वो लॉजिक वही है, लेजर का ही फॉर्मेट है. अच्छा, बस पर्टिकुलर्स बीच में. Yes, and there is no different column for date, and हाँ. so there's a common column for date. ये वाला ये. But the format is a little different because ये format किसका मालूम है? पेटी कैशियर का है. उसको क्या बोला गया मालूम है बच्चे? That whatever particulars तो तुमको यहाँ पे लिखना है वो लिखना है नॉर्मल. टू बाई जो भी है वो तो लिखना है. Whenever you are receiving, write it over here. Whenever you are paying, write it over here. खत्म. पड़ गया. उसको बहुत इजी पड़ गया. मतलब इफ इज नॉट हैविंग अकाउंटिंग का बैकग्राउंड, सर वो पियून है जनरली. उन लोग ग्रेजुएशन तक नहीं जाते, या फिर बोलते ना उनका क्वालिफिकेशन इतना नहीं है कि भाई यू शुड बी एन एम ए करके आओ या एम.कॉम करके आओ, ऐसा नहीं होता है. नॉर्मल उनके पास में बेसिक नॉलेज है, लिखना आता है, उसको पढ़ना आता है, ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, खत्म, हम उसको जॉब दे देते हैं. ठीक है, तो उनके लिए हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते. तो ये सिस्टम उसको एक पीस ऑफ पेपर बना के दे देते हैं. उसको क्या बोलेंगे? वेन एवर यू आर गेटिंग द मनी राइट इट ओवर हियर, वेन एवर यू आर पेइंग द मनी राइट इट ओवर हियर. पैसा आया तो यहाँ पे, पैसा गया तो यहाँ पे, खत्म. और यहाँ पे लिख दिया करो किस किस का पैसा है. और ऐसा भी नहीं कि एकदम सिस्टमैटिकली बनाता है. जैसे कि हम लोग को पता है कि पेन पेंसिल लिया, तो ही माइट बी राइटिंग नॉट, ही माइट नॉट बी राइटिंग स्टेशनरी या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. हाँ, वो पेन पेंसिल लिखेगा वो. समझे आप? बट वो नॉर्मल वो प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब हम लोग को तो ये बनाना है यहाँ पे, विल बी लाइक प्रॉपरली राइटिंग दैट स्टफ, है ना. आप ऐसा मत बन जाना वहाँ पे, सर मैं प्यून हूँ, मैं क्यों नहीं बनाना आता है, मेरे को मार्क्स दो, ऐसा ही बोला नहीं चलेगा सर ऐसा. करेक्ट है. विल टेक अप अ क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं. दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. यहाँ पे बेसिक है ये. सर मैं क्या करता हूँ मालूम है, ये फॉर्मेट का ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पे. क्या बोल रहे हो, है ना? कौन इतना फिर से बनाएगा. जब हमारे पास में टेक्नोलॉजिया है तो हम उसको क्यों इस्तेमाल ना करें. अच्छा बच्चे, आपका यूनिवर्सिटी है ना, इट डजेंट राइट रिसीट नंबर. ठीक है, तो हम लोग इसको हटा दें, क्योंकि हमारा कॉलेज भी इसको फॉलो नहीं करने वाला. तो रादर कंफ्यूजिंग आवर सेल्फ, ये नहीं लिखते हम लोग. ठीक है, वाउचर नंबर लिखते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, बिकॉज द पेटी कैश इज गोना रिसीव ओनली वंस इन अ मंथ. पहला पैसा ले लेगा, खत्म होगा, उसमें से खर्चा करता रहेगा, तो उसके बाद रिसीट नंबर का कुछ लॉजिक नहीं बनता. बट वाउचर नंबर उसको उसके पास में बहुत सारे बनेंगे. ठीक है. सो दिस इज सिर्फ एक्सपेंसेस ही होगा ना ये. ओनली एक्सपेंसेस, जनरली एक्सपेंसेस होगा. अगर कभी ऐसा कुछ अनयूजुअल कुछ रिसीट हुआ तो अलग बात है. ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट बुक में से लिया है, बट डाल देते बीच के बेसिक. या फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ सिंपल पेटी कैश बुक. बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, है ना. ऑफ नोहा, इन द बुक्स ऑफ नोहा ब्रदर्स, 2019 जनवरी 1 रिसीव फ्रॉम द हेड कैशियर 1200 रुपया. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला वाला ही मोस्टली रिसीव कर. ऑलवेज. सब आप पैसे रिसीव किए बिना कैसे स्पेंड करोगे. जनरली वो पहले वाला क्या होता है, रिसीट ही होता है. 1 जनवरी 2019, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट. सर आपको पता है कि टू लिखते हैं हम लोग, वेरी फॉर रिसीट, एंड वी राइट बाय फॉर द पेमेंट्स एंड ऑल. करेक्ट. सो हियर आई विल नॉट बी राइटिंग एनीथिंग. यहाँ पे अमाउंट लिखना पड़ेगा 1200 रुपया. डू यू अंडरस्टैंड दिस? टू गुड. 4 जनवरी 2019 पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस 193. बाय क्या बात है सर, लैंग्वेज चल रहा है. कुछ भी नहीं. रिजर्वेशन. सर वो बेचारा अपना तो प्यून है ना,
सो का इतना तकलीफ देंगे हम लोग. नेक्स्ट, सेवेंथ, मोबाइल चार्जेस 57 रुपीज. मोबाइल करेक्ट. टेंथ, purchased office files 125. बाय ऑफिस में. सर हम लोग थोड़ा सा अच्छा लिखे इसमें, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाँ. है ना. See, the person will be writing office files only, yeah? हाँ. But कैसा होता है ना कि this is not, we are not the peon हाँ. and this is not the practical world. हाँ. So we will write printing and stationery. Brackets में you write office files. Like in some colleges, some professors are of the opinion that you do go out to the ground level and you think that you are a peon and then afterwards record the transaction and write it. But sir, it doesn't make any sense. मुझे नहीं लगता कि वो sense बना रहा है, ठीक है? When we can write and we can learn, तो why to unlearn and go in that level and do it, है ना? ये हम लोग इसके लिए नहीं बना था कि हम लोग प्यून को चेक करने दे सके. सही है. सही. ये पीछे ही चेक करने वाला है, तो यू राइट इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक फॉर्मेट. अच्छा, द नेक्स्ट वन दैट इज गिव टिप टू द प्यून. बाय. बाई आएगा. नाउ डोंट अज्यूम दैट सर हम लोग तो प्यून होते हैं तो हम लोग को टिप मिला है. नो, यहाँ पे गिव बोला है. बिजनेस. हम लोग बिजनेस ले रहे थे, क्वाइट पॉसिबल कोई दूसरे ऑफिस से कोई प्यून आया होगा, उसको टिप दिया होगा. दे कैन बी एनीथिंग, राइट. टिप को लिख बाय टिप. बाई टिप अकाउंट, बाई टिप टू प्यून अकाउंट 40 रुपीज. सर डेट क्या था? 14. और अमाउंट क्या था? 40 रुपीज. सर इजी लग रहा है? हाँ. बहुत इजी है ये वाला तो. The next one that we have is 16th, by sale of old newspaper मेरे बच्चे. तो here you are going to receive the amount, आएगा. हाँ. है ना. तो ये आप डेबिट साइड पे लिखोगे या आप ये रिसीट साइड पे लिखोगे ऑन द लेफ्ट साइड. टू सेल्स अकाउंट होगा. वेरी गुड. बट सेल्स नहीं लिखोगे सर, आप यू राइट टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर 60 रुपीज. यू अंडरस्टैंड दिस मुन्ना? सो मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि हम लोग को डिस्टिंग्विश कर सकें. टू होगा. सर अब स्मार्ट है सर, मतलब हम दोनों में से एक जन तो जाग रहा है. Not write the amount over here. I'll write the amount over here. 60 rupees. Account. पक्की बात है सर ये? Too good sir. Now the date is 19. Give an advance to Sweetie. बाय एडवांस. Sweetie, 100 rupees. 19th is the date. Now, see, whenever we give an advance ना, quite possible that हमारे पास में कोई छोटा ट्रांजैक्शन था, 1000, 2000, 5000 का, एंड प्यून वहाँ पे था. ऑर्डर तो कर लिया, बट द अदर पर्सन नॉट हैविंग फेथ इन यू कि भाई तुम वो पार्सल लोगे, कैश ऑन डिलीवरी करोगे नहीं करोगे. तो वो प्यून वहीं पे था, उसने क्या बोला, एक एक काम कर, 100 रुपये दे दे. तो यहाँ पे ये डेली का एक्सपेंस नहीं होगा सर. ये डेली हम लोग एडवांस इसको इसको नहीं बोलेंगे देने के लिए, बट दिस इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन दैट हैपेंड एंड इट गिव इट. सो ये कोई एक्सपेंस नहीं है सर, ये याद रखना आप. ये एक्सपेंस है क्या? नो, इट्स नॉट एन एक्सपेंस. इट इज एन एडवांस गिवन. तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है. अच्छा एडवांस. हाँ, नहीं समझा आपको सर. ये आपको कभी काम में आएगा जब मैं आपको एनालिटिकल बताऊंगा, तो मैं आपको फिर से रेफर करूंगा. मैंने आपको लास्ट टाइम स्वीटी के बारे में एग्जांपल दिया था. तो यू जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, दिस इज एन एडवांस गिवन. सो बेसिकली दिस इज योर पर्सनल अकाउंट. एनालिटिकल में अपने काम में आएगा ये वाला एक्सप्लेनेशन जो आपको मैंने किया. बट अभी अपने को टेंशन लेने का नहीं. कभी भी पैसा आया तो डेबिट यहाँ पे लिखने का रिसीट साइड पे, कभी भी पेमेंट आप दे रहे हो तो कहाँ लिखने का? ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब पेमेंट साइड पे, ये वाला साइड, दिस साइड. डू यू अंडरस्टैंड दैट मुन्ना? क्या बात है सर. पैकिंग चार्जेस paid for packing charge 20 seconds 170 rupees.
करेक्ट है ना? Yes. नॉर्मल है. नाउ 24th क्या बोल रही है वो? पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 120 रुपीज. Why it is good account? चल मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको. ADVT एडवर्टीजमेंट शॉर्टकट है मेरा. 27th पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस 60 रुपीज. Why charges? गिव डोनेशन 101 रुपए. क्या बात है. Why donation? Donation लिखते हैं. या मस्त अमाउंट. परचेज रेवेन्यू स्टैम्प ये प्रिंटिंग ये पोस्ट एंड टेलीग्राम हो गया बेटा. Also. When would you have a revenue stamp? When you just do the send a telegram to a person from a different state or different location. Why? Postage and telegram लिख सकते हैं. 60 रुपीज. नहीं समझा? डिफिकल्टी एकदम इजी. नाउ बच्चे सबसे पहले तब क्या करोगे मालूम है? आप पहले टोटल ले लोगे. क्या करोगे? सबको प्लस कर दोगे. ये पहले लास्ट डिजिट याद है. 3 and 7 10 10 15 16 1 carry. Now I am on the second last digit. 10 15 17 21 28 21 28 हाँ 30 36 42 4 carry. Now I am on the fourth last digit. 5 6 7 8 9 10 1026. Now Bachi, have a look at this. You received in total 1260. सर इसमें ऊपर 4 कैरी हो रहा. हाँ तो हुआ ना. 5 हुआ ना. हाँ. ये 4 5 6 7 अच्छा 8 5 9 वाली काउंट कर. 5 तो हाँ, 50 से तो थर्ड लेटर 50 डिजिट. यस यस यस. 1260 सर. हाँ. 6 में 4 डालेंगे तो 10 हो जाएगा. ये 3 में 3 डालेंगे तो 6 हो जाएगा. सो 234 इज द आंसर सर. जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बच्ची? 234. तो वो भी बैलेंस. दैट इज गोइंग टू बी अ बैलेंस. ये अपन ने पहले कर लिया है ना. अबे सर्कल करो तो यार. हाँ अभी हुआ ना बराबर से. सो दिस इज गोइंग टू बी अ बैलेंस. बाय बैलेंस. कैरी डाउन. CD. CD 31st of January 2019 एंड वही नीचे आ जाएगा बिकॉज दिस बैलेंस this amount doesn't belong to the peon. This belongs to the firm. So the next time तो बच गया वही. ये very good. In the first month, in the first day of the next month, बाय टू बैलेंस BD. नहीं समझा? एकदम इजी. दिस इट इज अ कैश बुक बट इन अ डिफरेंट फॉर्म. मतलब थोड़ा फॉर्मेट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एंड देन दिस इज डन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज इसको फटाफट से लिख लीजिए है ना. फिर मैं नेक्स्ट एनालिटिकल डायरेक्टली आई गो टू द एनालिटिकल वन. मैं इसका एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ. ठीक है. एक मैंने होमवर्क के लिए आपको दे दिया है सेम सिमिलर टाइप का. हम लोग नेक्स्ट क्या चालू करेंगे? एनालिटिकल पेटी कैश.